Hello students. Today I have started your chapter number 6, general principle and processes of isolation of elements, right? So first define the following terms. So first term is minerals. So the naturally occurring chemical substance in which metals occur in the native or a combined state, right, are called the mineral. मिनरल किसे बोलते हैं? तो कि वो केमिकल सब्सटेंस जो नेचर में से मिलता है वो हमें प्योर फॉर्म में भी मिल सकता है और कॉम्बिनेशन फॉर्म में भी मिल सकता है, राइट? एंड मिनरल्स आर obtained through mining, right? Next, ore. So, the minerals that are viable to be used as a source of metals, right, are called ores. Next, metallurgy. The entire scientific and technological process used for isolation of metal, मतलब कि for metal को separate करने के लिए जो process है, right? साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन एज अ मेटालर्जी, राइट? नेक्स्ट, गैंग. तो कि द अर्थली और अनडिजायर्ड मटेरियल प्रेजेंट इन एन ऑर आर नॉन एज अ गैंग. तो गैंग पार्टिकल में जो अननेसेसरी मटेरियल है जिसकी हमें जरूरत नहीं है, राइट, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? गैंग बोलते हैं, राइट? नेक्स्ट, एक्सप्लेन occurrence of an element in nature. So element are obtained naturally in a native state and a combined state, right? The combined ore are further classified as a oxidized ore, then sulfide ore, carbonate ore, halide ore, etc. right? मतलब कि और भी डिफरेंट टाइप की होती है जो ऑक्सीडाइज हो सकती है, उसे ऑक्सीडाइज ore बोलते हैं. सल्फर कंटेनिंग ore is called sulfide ore, right? Then carbonate ore, halide containing ore is known as halide ore, right, etc. For example, elements like carbon, sulfur, gold and noble gases occur in a free state, right? While other elements are found in a combined form in a earth crust, right? The elements vary in a abundance, and among metals, aluminium is the most abundant, right? And in fact, it is the third most abundant, right, element in a earth crust, aluminium, and approximately 8.3% by weight. It is also a major component of many igneous minerals, right, including mica and clay. And many gemstones are impure form of Al2O3, right? For example, ruby and sapphire have impurities of a chromium and cobalt respectively, right? Iron is the second most abundant metal in a earth crust, right? Third abundant metal कौन सी है? तो कि aluminium. Second abundant metal is iron, and it forms a variety of compounds, right? And their variety uses make it a very important element, and it is also one of the most important element in a biological system. We know that in our body में भी हमारी बॉडी में भी आयरन है, राइट? तो इसीलिए यहाँ पे क्या बोला है? तो कि इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन अ biological system, right? The principal ores of aluminium, iron, copper and zinc are हमें यहाँ पे दी हुई है किस किस की मेटल्स, कौन सी मेटल की ऑर्स के बारे में बताया हुआ है? तो कि एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर एंड जिंक, राइट? तो उसकी और उस दोनों का कंपोजिशन भी हमें दिया हुआ है, राइट? तो फर्स्ट बॉक्साइट, एल्यूमिनियम की और बॉक्साइट एंड क्रियोलिनाइट, राइट, और उसका कंपोजिशन भी हमें दिया हुआ है, राइट? देन सेकंड आयरन, तो आयरन की ओर से हेमेटाइट Fe2O3, मैग्नेटाइट Fe3O4, सिडेराइट FeSO3, आयरन पाइराइट FeS2. देन कॉपर पाइराइट CuFeS2, मैलेकाइट CuCO2 CuOH twice, cuprite Cu2O, and copper glass Cu2S, sulfur containing ore, right? And next zinc, तो कि जिंक ब्लैंक और जिंक ब्लैंक और स्फेलेराइट ZnS, कैलेमाइन ZnCO3, जिंकेट ZnO, राइट? तो ये सब ऑल सी एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर एंड जिंक कंटेनिंग, राइट? नेक्स्ट, enlist the various steps involving the extraction of metal, right? तो जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मैटर है, राइट, उसके कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स है. तो फर्स्ट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ
और का कॉन्सेंट्रेशन करना है। कौन कौन सी प्रोसेस है, तो क्या हाइड्रोलिक वॉशिंग, देन मैग्नेटिक सेपरेशन, फ्लोटेशन एंड ब्लीचिंग, राइट। देन कॉन्सेंट्रेटेड और का क्या करना है, आइसोलेशन ऑफ अ मेटल फ्रॉम और, कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, स्मेलिंग, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, ऑटो रिडक्शन एंड थर्माइट रिडक्शन, राइट। देन उसका रिफाइनिंग करना है, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में ये चैप्टर में डिस्कस करेंगे, राइट। डिस्टिलेशन, लिक्विएशन, वेपर फेज रिफाइनिंग, ड्रॉन रिफाइनिंग, कोलिंग, क्रोमेटोग्राफी, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग एंड ट्रिप्लेक्शन, राइट। तो ये सब के बारे में हमें आगे पढ़ना है, राइट। और ये सब प्रोसेस हो जाएगी, उसके बाद हमें क्या मिलेगी, प्योर मेटल, राइट। तो ये सब के बारे में नहीं, लेकिन इसमें से कुछ के बारे में, राइट, कुछ टॉपिक के बारे में हम लोग फर्दर ये चैप्टर में डिस्कशन करेंगे, राइट। तो फर्स्ट मेथड है, फर्स्ट क्या बोला है आपको कि व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑर, तो कि द रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज और गैंग, राइट, सच एज अ सैंड, क्ले एक्सेट्रा। कोई भी और से उसमें जो इम्प्योरिटी होती है, राइट, गैंग पार्टिकल्स होते हैं लाइक अ सैंड एंड क्ले जितने, राइट, एंड फ्रॉम द और इज नोन एज अ और बेनिफिकेशन और अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ और, मतलब कि उसको हम लोग रिमूव करते हैं, राइट, किसमें से, तो कि और में से। तो ये वो जो इम्प्योरिटी को रिमूवल करने की प्रोसेस है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ और, राइट। तो बिफोर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ और, द और आर ग्राइंडेड, क्रश करना पड़ता है उसे, राइट, टू रीजनेबल साइज, एंड दिस इज नोन एज द क्रशिंग ऑफ और को हम लोग क्रश करेंगे, राइट। एंड व्हेन द और इज क्रश इनटू अ फाइन पार्टिकल, इट इज नोन एज द पुल्वेराइजेशन, राइट। तो ये जो प्रोसेस है उसको कट करने की, उसकी बात की है, राइट। देन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑर इन्वॉल्व सेवरल स्टेप्स, राइट, एंड सिलेक्शन ऑफ दिस स्टेप डिपेंड अपॉन द डिफरेंस इन अ फिजिकल प्रॉपर्टी। वो डिफरेंट स्टेप की प्रोसेस है, और वो कौन से स्टेप में वो प्रोसेस होगी, वो किस पे डिपेंड करता है, क्योंकि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड, राइट, ऑफ द मेटल एंड अ गैंग प्रेजेंट इन ऑर, एंड द टाइप ऑफ मेटल, the available facility and the environmental factor are also taken into consideration. तो ये था concentration of all, right? तो next, what is our benefaction? तो कि वही लिखना है इसमें भी, राइट। ये जो हमने लास्ट क्वेश्चन डिस्कस किया ना, व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ और व्हाट इज और बेनिफेक्शन, वो दोनों सेम ही है, दोनों में सेम आंसर ही हमें लिखना है, राइट। नेक्स्ट, एक्सप्लेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ और की जो कॉन्सेंट्रेशन की प्रोसेस है, राइट, वो डिफरेंट स्टेप से हम लोग कर सकते हैं। फर्स्ट है हाइड्रोलिक वॉशिंग और सेकंड है मैग्नेटिक सेपरेशन, राइट। ये दो प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे पहले। तो क्या फर्स्ट हाइड्रोलिक वॉशिंग, तो क्या द मेथड इज बेस्ड ऑन अ difference between a specific gravity of the ores and the gas particle। दोनों की स्पेसिफिक ग्रेविटी में अगर डिफरेंस हो रहा है तो हम लोग ये मेथड का यूज कर सकते हैं। इसमें क्या करना है, तो कि अपवर्ड सिस्टम ऑफ रनिंग वाटर इज यूज टू वॉश द पाउडर और, मतलब कि और को हमें पाउडर फॉर्म में फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसको क्रश करना है, राइट। देन वो पार्टिकल को ऐसी जो सरफेस है, राइट, स्लोप वाली, वहां पे रखना है और वहां से हमें फोर्स में वाटर अप्लाई करना है। तो वहां पे क्या हो जाएगा कि जो पाउडर और है ना वो वॉश हो जाएगी, और जो हेवी मटेरियल्स है मेटल का वो वहां पे सेटल डाउन हो जाएंगे, राइट। The lighter gain particles are washed away, right, and the heavier ore particles are left behind। और वो जो heavier particles है वो मे भी किसके हो सकते हैं, वो metals के हो सकते हैं, राइट। उसमें impurity का proportion बहुत ही लेस होगा। And the method is also refer as a gravity separation। तो इसे हम लोग और gravity separation के नाम से भी बुला सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, मैग्नेटिक सेपरेशन, इसके बारे में आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा कि ऐसे मैग्नेटिक रोलर आता है, राइट। तो द मेथड इज बेस्ड ऑन अ डिफरेंस इन अ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द और कंपोनेंट, राइट। और कंपोनेंट की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में अगर डिफरेंस है, फर्स्ट वाली ग्रेविटी की बात की थी, राइट, ये सेकंड है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में अगर डिफरेंस है, तो हम लोग ये मेथड का यूज कर सकते हैं, राइट। इन दिस मेथड द पाउडर और इज अ ड्रॉप ओवर अ कन्वेनियर बेल्ट, राइट। यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, पाउडर फॉर्म में उसको
यहाँ पे और को डालना है, राइट। देन ये जो रोलर है, ये रोलर मूव होगा तो यहाँ पे क्या होगा कि जिसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लेस है ना, वो ऐसे दूर होके दूर चला जाएगा, राइट। और जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जिसकी ज्यादा है, जो मैग्नेटिक है, वो यहाँ पे उससे नजदीक जमा हो जाएगा, राइट। Which move over a magnetic roller as shown in figure. Magnetic separation and either or a gangue particle remain attracted toward the belt and falls close to it, right. For example, iron ores are concentrated by this method, right. ये जो मेथड है, ये मेथड का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, तो कि आयरन कंटेनिंग जो मेटल है उसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं ड्यू टू दिस फॉर्मेशन, राइट, ड्यू टू दिस मेथड। नेक्स्ट थर्ड मेथड इज एक्सप्लेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ऑर्स, मतलब कि जो सल्फाइड कंटेनिंग ऑर्स है तो उसका हम लोग सेपरेशन फ्लोटेशन प्रोसेस, मतलब कि ये प्रोसेस से हम लोग कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे देखो ये रोटेटिंग पेडल है, राइट। देन यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, मिनरल, यहाँ पे हम लोग जो ऑर्स है उसका पाउडर फॉर्म लेते हैं, राइट। इन दिस प्रोसेस हम लोग ऑयल का भी यूज करते हैं, राइट। The process is based on the difference in weighting properties, right, of ore and impurity in presence of water and frothing agent, right. Frothing agent और water दोनों को ऐड करते हैं, right. And the following components are chosen for the process. First, frothers, तो कि the substance create froth, पाइन ऑयल एंड टर्पेंटाइन ऑयल एक्सेट्रा। देन कलेक्टर, तो कि कलेक्टर क्या करता है, तो कि कलेक्टर हेल्प इन एडहेशन of ore particles to air bubble in a float, right. For example, sodium methyl xanthate. Then स्टेबिलाईजर के लिए, स्टेबिलाईजर किसके लिए यूज होता है, तो कि फॉर स्टेबिलाईज के लिए एनिलीन और क्रेसोल का यूज करते हैं। एंड नेक्स्ट डिप्रेशन, मतलब कि वो किसके लिए यूज होता है, क्योंकि दिस सब्सटेंस प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ अ फ्लोट, राइट, उसको फॉर्मेशन करता है उसका विद एयर बबल, और उसके लिए हम लोग यूज करते हैं सोडियम साइनाइड, राइट। इन दिस प्रोसेस अ सस्पेंशन ऑफ द पाउडर और इज मेड इन वाटर and the mineral particle become weight by oils, while gangue particle by water, right. mineral particle है वो weight होते हैं oil से और gangue particle water से, right. and the rotating pedal agitates the mixture and rose air in it, and as a result froth is formed which carries a mineral particle, froth form होगा, right. and the froth is light होगा and skimmed off, वो बाहर आ जाएगा, and it is then ड्राइड फॉर अ रिकवरी ऑफ ऑल पार्टिकल, और उसे हम लोग ड्राई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ऑल पार्टिकल, राइट। रोल ऑफ अ डिप्रेशन, तो डिप्रेशन क्या करते हैं, क्योंकि समटाइम इट इज पॉसिबल टू सेपरेट टू सल्फाइड ऑर्स, राइट। टू सल्फाइड और उसमें प्रेजेंट है तो हम लोग इसका यूज करते हैं बाय एडजस्टिंग प्रपोर्शन ऑफ ऑयल टू वाटर or by adding depression, right. For example, in case of an ore containing ZnS and PbS, zinc and lead दोनों अगर present है, right, तो the depressant is used is NaCl. तो at that time we use NaCl in a depression form, right. NaCl form a layer of a zinc complex, मतलब कि वो जिंक के साथ अटैच होगा और जिंक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा and on the surface of a ZnS, and thereby prevent it from the froth formation and allow PbS to come with the froth, मतलब कि वो सेटल हो जाएगा और जो फ्रोथ है, राइट, उसमें PbS चला जाएगा, राइट। तो हम दोनों को ZnS और PbS दोनों को हम सेपरेट कर सकते हैं, राइट। The sulfide ore being the lighter and get weight easily by oils come on the surface and leaving behind gas, and hence this method is used for concentration of sulfide ore, right. Sulfide ore के concentration के लिए हम लोग इसका use करते हैं फोर्थ फ्लोटेशन मेथड की, right. यही प्रोसेस है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या था, एक्सप्लेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फाइड और वही यहाँ पे क्वेश्चन है एक्सप्लेन फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस, तो दोनों में आंसर सेम आएगा, राइट। एंड नेक्स्ट लास्ट है एक्सप्लेन लीचिंग, राइट, लीचिंग प्रोसेस, तो उसमें है एल्यूमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट एंड गोल्ड एंड सिल्वर। तो फर्स्ट ये कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो कि इट वर्क ऑन द डिफरेंट
in the solubilities of ore and impurity in a suitable solvent. Then leaching of aluminium. Right? Bauxite is the principal ore of aluminium and it has the impurity of a ferric oxide, silica and titanium oxide. The powder ore is digested with a concentrated NaOH solution, right, at a 473 to 523 Kelvin temperature and 35 to 36 bar pressure. The aluminium gets dissolved, right? वो aluminium dissolve होगी कौन से फॉर्म में? तो कि Fe2 एक मिनट. The aluminium gets dissolved as the aluminate, right? While Fe2O3 and TiO2 are left behind, right? तो ये जो एल्यूमिनेट फॉर्म होगा वो कौन सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा? ये सोडियम एल्यूमिनेट, right? Al2O3, NaOH and H2O attach with each other at 473 Kelvin to 523 Kelvin and to form NaAlOH4, right? Then SiO2 and NaOH उसमें से क्या फॉर्म होगा? Na2SiO3 plus H2O, right? सोडियम एल्यूमिनेट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन इज न्यूट्रलाइज. उसे हम लोग क्या करेंगे? न्यूट्रलाइज करेंगे CO2 से, राइट? तो हाइड्रेटेड Al2O3 इज अ प्रेसिपिटेट. Al2O3 फॉर्म होगा लेकिन उसमें से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, राइट? एंड एट दिस स्टेज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड. उस टाइम पे हमें क्या करना है? स्मॉल प्रपोर्शन में फ्रेशली प्रिपेयर Al2O3 एडेड करना है, राइट? वाई? उसे क्यों ऐड करना है? तो कि ये जो प्रोसेस है उसे हम क्या बोलते हैं? सीडिंग बोलते हैं, राइट? एंड इट इंड्यूस प्रेसिपिटेट, मतलब कि वो प्रेसिपिटेट को फॉर्म करने के लिए इंड्यूस करता है, राइट? कि प्रेसिपिटेट को फॉर्म करना है हमें, राइट? देन सोडियम सिलिकेट जो मिलता है, सोडियम सिलिकेट रिमेन इन द सॉल्यूशन एंड हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम इज फिल्ट्रेटेड टू गिव बैक अ प्योर Al2O3, राइट? वो ये जो Al2O3 मिला उसे हमें हीट करना है 1470 केल्विन टेम्परेचर से. तो हमें क्या मिलेगा? Al2O3 और H2O उसमें से रिलीज होगा, राइट? देन फाइनाइट प्रोसेस, मतलब कि लीचिंग ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर. तो कि इन द मेटालर्जी ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर द रिस्पेक्टिव मेटल इज लीच्ड, right, with KCl and NaCl and in the presence of air with supply O2. O2 को हमें सप्लाई करना है एंड मेटल गोल्ड और सिल्वर की मेटल को NaCl के साथ अटैच करना है. तो उस टाइम पे क्या होगा? पर्टिकुलर एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, राइट? देन वो कॉम्प्लेक्स को हमें क्या करना है? जिंक के साथ रिएक्ट करना है, राइट? तो वो जिंक साइनेट फॉर्म होगा, टेट्रा. एंड देन वो जो मेटल है गोल्ड और सिल्वर वो हमें प्योर फॉर्म में मिल जाएगी, राइट? द मेटल इज ऑब्टेन लेयर बाय रिप्लेसमेंट ऑफ रिएक्शन. यहाँ पे रिप्लेसमेंट होगा, राइट? Na की यहाँ पे जो NaCN था तो Na की जगह पे गोल्ड या सिल्वर आ जाएगा, राइट? इन दिस रिएक्शन M इज व्हाट? तो M इज इक्वल टू Ag और Au, राइट? Ag and Au is recovered from the solution by adding the electropositive element such as zinc. ये जिंक जैसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को ऐड करेंगे तो ये मेटल फ्री फॉर्म में आ जाएगी एंड जिंक अटैच विद साइनाइड आयन, राइट? तो ये प्रोसेस थी लीचिंग ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, राइट? ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट थी, बोर्ड की एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया है, राइट? तो इसे लर्न करना. ओके, थैंक यू.